students, as you know that today we will start our new chapter number 2, which is related to the polynomial. Before the introduction of polynomial, it is necessary for us to clear the some topic here. Our first topic is algebraic expression. An expression formed from by combination of number and a variable by using the operation of plus, minus, into and divide. That means algebraic expression is the combination of number and variable by using the mathematicals operation here. इसका मतलब ये है कि algebraic expression जो है वो नंबर और वेरिएबल दोनों का कॉम्बिनेशन है और वो आपस में जो कनेक्टेड होते हैं वो मैथमेटिकल ऑपरेशन जो हैं जैसे प्लस, माइनस, इनटू एंड डिवाइड है, इनसे आपस में कनेक्टेड होते हैं. यू कैन सी वन एग्जांपल हियर. फॉर एग्जांपल वी हैव वेरिएबल x and the mathematical number means constant number 2, and the both are connected by the operation plus sign, so it will be a algebraic expression. Okay, you can see one more example here. X minus 2. You can see x is the variable here and 2 is the constant, and both are connected by the operation minus sign, so it is also a algebraic expression. Okay, you can see x square upon 3. X is variable here and 3 is the constant, and both are connected by the mathematical operation divide. Is that clear? So algebraic expression, it is expression which is formed by the combination of variable and constant. Variable क्या होता है? Variable is alphabet numbers, okay, and constant mathematical number. वेरिएबल जो है वो अल्फ़ाबेट होते हैं, जैसे एक्स वाई जेड कुछ भी आ सकता है. यू कैन सी जेड स्क्वायर प्लस 2. जेड इज वेरिएबल and 2 is the constant, so both are connected by each other by the plus operation. Okay, so it is a algebraic expression. Now the second point is term of algebraic expression. You can see what is the mean of term here. The several part of algebraic expression separated by the plus and minus are called the term. Means जो algebraic expression है उसमें जितने भी आपके पास में पार्ट्स हैं वो प्लस और माइनस के थ्रू अलग होंगे, और जो पार्ट्स अलग होंगे वो पार्ट्स टर्म कहलाएंगे. फॉर एग्जांपल वी हैव अ algebraic expression here x plus 2. as you know that it is a alphabet and it's a constant, और मैंने आपको पहले भी बताया था x plus 2 algebraic expression है. अब यहाँ पे आप देखिएगा ये जो आपको दो पार्ट नज़र आ रहे हैं x और 2, ये प्लस साइन के थ्रू आपस में सेपरेट हैं. सो ये होगा पहला टर्म और ये हो जाएगा दूसरा टर्म. सो देयर आर टू टर्म. Now we will take one more example. X square plus x plus 3. You can see x वेरिएबल है एंड 3 जो है वो कांस्टेंट है, और ये आपस में प्लस ऑपरेशन के थ्रू आपस में कनेक्टेड है. अब यहाँ पर देखिए प्लस साइन, और इस प्लस साइन के थ्रू यहाँ पर 3 टर्म बन जाएंगे, एक्स स्क्वायर, एक्स एंड 3. सो यू कैन सी देर आर 3 टर्म. सो टर्म क्या हुआ? सेवरल पार्ट ऑफ एन
algebraic expression separated by the plus or minus. To clear the concept here, we will take one more example here. X square minus 3x plus 2. You can see यहाँ पर जो है वेरिएबल x है और कांस्टेंट जो है वो 2 और 3 है. नाउ इट इज़ अ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. अब यहाँ पे टर्म की बात करते हैं. देखिए माइनस साइन है, इसका मतलब ये टर्म अलग होगा और ये टर्म अलग होगा. सिमिलरली यहाँ पे प्लस साइन है तो ये टर्म क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा. नाउ यू कैन सी देयर आर 3 टर्म, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. ओके, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा. नाउ द थर्ड पॉइंट इज coefficient of variable. Coefficient is numerical value which has multiplied by variable. Means variable से जो constant multiply होता है वो variable का coefficient होता है. For example जैसे आप यहाँ देखिएगा, यहाँ पर 3 जो है वो x से multiply है, so x का जो coefficient है वो -3 है. Okay, we will take example here. 2x square plus x minus 3. It is a algebraic expression here. Okay, because it is a connection of a variable and constant with the operation plus and minus. You can see there are 3 terms. First term, second term and third term, because the several part are the separated by the plus sign and minus sign. Okay, now we will see the coefficient. यहाँ पे 2 जो है वो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई है, सो x स्क्वायर का जो coefficient होगा वो हो जाएगा 2. यहाँ पे देखिए x के साथ में कोई भी कांस्टेंट आपको नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब यहाँ पे 1 है. सो x का जो कोफिशिएंट होगा वो +1 हो जाएगा. इज दैट क्लियर? और यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है. ओके, सो यहाँ पे हम अगर आप चाहें तो x पावर 0 यू कैन पुट हियर, देन x पावर 0 कोफिशिएंट विल बी -3. ओके, नाउ विल टेक वन मोर एग्जांपल हियर. x minus x plus 2. What is the coefficient of x here? You can see यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है तो यहाँ पे 1 होगा, बट आगे साइन जो है वो माइनस का है, सो द coefficient of x will be -1. So coefficient of variable will be, it is the multiplied of the variable. ये वेरिएबल से मल्टीप्लाई होने वाला कांस्टेंट है. नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट द आवर न्यू पॉइंट, पॉलिनोमल. एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर इज कॉल्ड अ पॉलिनोमल. इसका मतलब ये है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो आपके पास में है, अगर उसमें वेरिएबल की पावर पॉजिटिव है तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमल कहलाएगा. मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो भी है आपके पास में, वी टेक वन एग्जांपल हियर. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3. यू कैन सी यहाँ पे जो वेरिएबल x है उसकी पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये जितने भी पावर हैं वो सभी पॉजिटिव हैं, सो ये पॉलिनोमल कहलाएगा. ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी है और उसके साथ ये पॉलिनोमल भी है. नाउ वी टेक वन मोर एग्जांपल. एक्स क्यूब प्लस एक्स अपॉन 3. यू कैन सी यहाँ पे देखिए वेरिएबल की जो पावर है वो 3 है और यहाँ पे है 1, तो इनकी जो पावर है वो पॉजिटिव है, सो इट विल बी आल्सो ए पॉलिनोमल. बट रिमेंबर दैट अगर पावर नेगेटिव हो,
You can take one example here, 3 upon x. You can see यहाँ पे जो x है वो डिनोमिनेटर है. जब आप इसे न्यूमिनेटर बनाएंगे, सो यू कैन राइट हियर 3x पावर नेगेटिव. ओके, यहाँ पे जो पावर है वो चेंज हो जाएगी जब आप इसे न्यूमिनेटर में चेंज करेंगे. सो यहाँ पे वेरिएबल की जो पावर है वो नेगेटिव है, सो ये पॉलिनोमल नहीं होगा. सो द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर द पॉलिनोमल, द पावर ऑफ वेरिएबल विल बी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल, मीन्स पावर जो है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए. आई होप आपको पॉलिनोमल समझ में आ गया होगा. नाउ वी विल सी द टाइप ऑफ द polynomial. We will see the type of polynomial according to the term के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि polynomial के टाइप कितने हैं. There are 3 type. There are 3 type. First type जो है वो होगा monomials. ओके, सेकेंड टाइप जो है वो होगा बाइनोमिल्स, एंड थर्ड टाइप विल बी ट्राइनोमिल्स. सो फर्स्ट वी टॉकिंग अबाउट द मोनोनोमिल्स. मोनोनोमिल क्या होते हैं? अगर टर्म केवल एक ही है सो आप उसे मोनोनोमल कहेंगे. फॉर एग्जांपल जैसे वी राइट हियर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे केवल एक ही टर्म है, सो इट विल बी अ मोनोनोमल. इज दैट क्लियर? सिमिलरली 2x, यहाँ पे देखिए एक ही टर्म है, क्योंकि टर्म को सेपरेट होने के लिए प्लस और माइनस साइन रिक्वायर्ड होता है. यहाँ पे 2 और x के बीच में जो है वो इनटू का साइन है, सो केवल ये एक ही टर्म माना जाएगा, सो इट विल बी मोनोनोमल. नाउ यू कैन सी x अपॉन 3, ये भी एक ही मोनोनोमल है. सॉरी, यहाँ एक ही टर्म है, सो ये मोनोनोमल होगा. नाउ बाइनोमिल, बाइनोमिल में 2 टर्म होते हैं, x प्लस 2. यू कैन सी यहाँ पे x और 2 प्लस साइन से सेपरेट हैं, तो ये 2 टर्म होंगे, सो यू कॉल इट बाइनोमिल. x माइनस 2, ये भी बाइनोमिल है. सो रिमेंबर दैट इफ यू सी 2 टर्म देन इट विल बी बाइनोमिल. नाउ वी विल टॉक अबाउट द ट्राइनोमिल. ट्राइनोमिल में 3 टर्म होते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3. यू कैन सी हियर देर आर 3 टर्म, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, सो यू कॉल्ड इट ट्राइनोमिल. ओके, रिमेंबर दैट term will be separated by only plus sign and minus sign. You can see one more example of the trinomial. X square minus x minus 4. You can see there are 3 terms, so it will be a trinomial. Okay, so in the monomial there are only 1 term, in the binomial there are only 2 term, and trinomial there will be 3 term. Is that clear? Now remember that there is a important point here. An expression with more than 3 term is named simply by its number of term. You can see यहाँ पे 3 terms तक जो नाम है वो ट्राइनोमिल्स हैं. अगर इससे ज़्यादा टर्म्स हैं तो आप उन्हें सिंपली उनके नाम से ही आप उन्हें कह सकते हैं. पोलिनोमल विथ 4 टर्म, यू कैन सी अगर 4 टर्म हो तो उस पोलिनोमल का क्या नाम होगा, तो यू कैन राइट हियर 4 टर्म पोलिनोमल. ओके,
अगर मान लीजिए पावर टर्म जो है वो 5 हो, तब आप उसका नाम क्या देंगे, 5 टर्म पॉलिनॉमल। इज दैट क्लियर? सो टर्म 3 तक जो नाम है, अगर एक ही टर्म है तो मोनोनॉमल होगा, 2 टर्म है तो बाइनॉमल, और अगर 3 है तो ट्राइनॉमल। एंड इफ़ यू हैव द टर्म मोर देन 3 देन यू कैन नेम बाय इट्स नंबर ऑफ टर्म। ओके, जितने भी उसके नंबर हैं, टर्म के जो नंबर हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसका नाम दे सकते हैं। नाउ वी विल सी टाइप ऑफ द पॉलिनॉमल ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल पावर। अब वेरिएबल की जो पावर है उसके बेस पे पॉलिनॉमल के क्या नाम होंगे जरा देखते हैं। इफ़ यू हैव द वेरिएबल पावर 0, अगर मान लीजिए वेरिएबल की पावर 0 हो, यू कैन सी वी हैव हियर 2 ओनली। अब यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, सो यू कैन राइट x पावर 0। ओके, नाउ यू कैन सी इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ओके, अब यहाँ पे जो वेरिएबल की पावर है वो 0 है, सो ये होगा वेरिएबल पावर 0 का पॉलिनॉमल। अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा कांस्टेंट पॉलिनॉमल। ओके, कांस्टेंट पॉलिनॉमल। इफ़ यू हैव वेरिएबल पावर 1, अगर वेरिएबल की पावर 1 हो जाए तब आप क्या नाम देंगे, यू कैन सी 2x। ओके, यहाँ पे देखिए x की जो पावर है वो 1 है, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा लीनियर पॉलिनॉमल। ओके, नाउ यू कैन सी पावर के अकॉर्डिंग लीनियर पॉलिनॉमल, एंड इफ़ यू सी अकॉर्डिंग टू द टर्म के अकॉर्डिंग अगर आप इसे देखें तो इसका नाम होगा मोनोनॉमल, क्योंकि ये एक ही टर्म है। वेरिएबल पावर 2, इफ़ यू हैव द पावर ऑफ वेरिएबल 2 देन द नेम ऑफ दिस पॉलिनॉमल विल बी, you can see 2x square plus x minus 4। you can see यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो 2 है, सो द नेम ऑफ दिस पॉलिनॉमल विल बी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमल। ओके, now if you have the variable power 3, you can take one example, 3x cube minus x square plus x minus 2। यहाँ पे जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो 3 है, और अगर वेरिएबल की पावर 3 हो सो पॉलिनॉमल का जो नाम होगा वो होगा क्यूबिक पॉलिनॉमल। इज दैट क्लियर? And if you have the power 4 of the variable, you can see one example, x power 4 minus 3x square plus x minus 2। यहाँ पे जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो 4 है, सो व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस पॉलिनॉमल, द नेम ऑफ दिस पॉलिनॉमल विल बी बाई क्वाड्रेटिक। Okay, so remember that type of the polynomial on the basis of power, if you have the power 0 that means it will be constant, क्योंकि यहाँ से x की पावर अगर 0 है तो आप उसे राइट नहीं करेंगे, केवल आप लिखेंगे 2, सो यहाँ पे ये केवल कांस्टेंट है, सो द नेम ऑफ दिस पॉलिनॉमल विल बी कांस्टेंट पॉलिनॉमल। अकॉर्डिंग टू पावर 1 it will be linear polynomial, if you have power 2 then it will be quadratic polynomial, if you have power 3 then name of this polynomial cubic, and if you have power 4 then it will be biquadratic। इससे आगे भी होती है बट हमारे सिलेबस में इससे आगे नहीं है। नाउ अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर अगर पावर यहाँ पर 0 है तो आपने कहा कांस्टेंट पॉलिनॉमल। मान लीजिए कि
जो कांस्टेंट है वो ही जीरो है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई पॉलिनोमल है, मैंने लिखा ज़ीरो, you know that zero is a constant, so according to your rule the name of this polynomial will be constant polynomial। बट यहाँ पे एक स्पेशल केस है कि जब भी आपके पास में कांस्टेंट जीरो हो तो आप उसे कांस्टेंट पोलिनोमल ना कह के ज़ीरो पोलिनोमल कहें। इज दैट क्लियर? रिमेंबर दैट इफ़ यू हैव कांस्टेंट जीरो एज अ पोलिनोमल देन द नेम ऑफ दिस पोलिनोमल विल बी ज़ीरो पोलिनोमल। और इसके अलावा अगर कोई कांस्टेंट है जैसे 2 है, 3 है, 4 है, सो यू कैन नेम इट कांस्टेंट पोलिनोमल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।